बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहज़ेब अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर। आपको अलिफ लाम मीम एकेडमी के इस लेक्चर में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है सर फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ एडवर्सिटी। इट वॉज एन हाई स्पीच ऑफ सेनेका आफ्टर द मैनर ऑफ स्टोइक्स, that the good things which belong to prosperity are to be wished, but the good things that belong to adversity are to be admired. Certainly, if miracles be the command over nature, they appear most in adversity. It is yet a higher speech of his than the other, much too high for a heathen. It is true greatness to have in one the frailty of a man and the security of a God. This would have done better in poesy, where transcendences are more allowed. And the poets indeed have been busy with it. For it is in effect the thing which is figured in that strange fiction of the ancient poets, which seemeth not to be without mystery, nay, and to have some approach to the state of a Christian, that Hercules, when he went to unbind Prometheus, by whom human nature is represented, sailed the length of the great ocean in an earthen pod or pitcher, lively describing Christian resolution that saileth in the frail bark of the flesh, through the waves of the world. But to speak in a mean
The virtue of prosperity is temperance. The virtue of adversity is fortitude, which in morals is the more heroical virtue. Prosperity is the blessing of the Old Testament. Adversity is the blessing of the New, which carrieth the great benediction and the clearer revelation of God's favor. Yet, even in the Old Testament, if you listen to David's harp, you shall hear as many ears like airs as carols, and the pencil of the Holy Ghost hath labored more in describing the afflictions of Job than the felicities of Solomon. Prosperity is not without many fears and distastes, and adversity is not without comforts and hopes. We see in needleworks and embroideries, it is more pleasing to have a lively work upon a sad and solemn ground than to have a dark and melancholy work upon a lightsome ground. Judge therefore of the player of the heart by the player of the eye. Certainly, virtue is like precious odors, most fragrant when they are incensed or crushed. The prosperity doth best discover vice, but adversity doth best discover virtue. नाजरीन, दूसरे पोर्शन में हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। उससे मुतालिक हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर की किस्में। सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। सेंटेंसेस को 3 काइंड्स में डिवाइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द वे दे आर बिल्ड, जिस तरह से उन्हें बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्लॉजेस, उनके नंबर ऑफ क्लॉजेस के हिसाब से इंक्लूडेड जो शामिल हैं, एंड वेदर द क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट, और ये कि क्लॉज इंडिपेंडेंट है, आई मेन क्लॉज या मेन क्लॉज, और डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेट्स discuss a simple sentence. A simple sentence expresses one main idea. एक
सादा फ़िक्रे में एक अहम ख्याल होता है, दस इट हैज़ वन मेन क्लॉज, उसकी एक ही मेन क्लॉज होती है, विच में हैव वर्ड और फ्रेज मॉडिफायर्स, जिसमें वर्ड या फ्रेज मॉडिफायर्स होते हैं। एडजेक्टिव्स, आइदर दे आर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स और प्रेपोजिशनल फ्रेज, या तो वो एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब या प्रेपोजिशनल फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वॉज बॉर्न इन इंडिया, मिसाल के तौर पे फ़िक्रा है माई फादर वॉज बॉर्न इन इंडिया। ये सिंपल सेंटेंस की एक मिसाल थी। लेट्स डिस्कस अ कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस एक्सप्रेसेस टू और मोर मेन आइडियाज। एक कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा मेन आइडियाज को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल होता है इन टू और मोर इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉजेस, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज होती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, माई फादर वॉज बॉर्न इन इंडिया बट ही केम टू पाकिस्तान व्हेन ही वॉज अ बॉय। इस फिक्रे में एक मेन आइडिया वन एंड मेन आइडिया टू। Let's discuss a compound sentence. A compound sentence expresses one main idea. Compound sentence एक main idea express करता है and at least one subordinate idea, और एक subordinate idea. Thus it contains one independent clause. इस तरह से उसमें एक independent clause होती है एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, माई फादर केम हेयर फ्रॉम इंडिया व्हेन ही वॉज अ स्मॉल बॉय। देयर लाइज अ मेन आइडिया एंड एन सबऑर्डिनेट आइडिया। माई फादर came here from India. In this portion of the sentence, there lies main idea. When he was a small boy, there lies subordinate idea. A compound complex sentence. Let's discuss a compound complex sentence. A compound complex sentence is a combination that includes at least वन डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एंड एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। ऑल्दो, फॉर एग्जांपल, ऑल्दो द टिकट्स हैड बीन बॉट, टॉम डिडंट रीच ऑन टाइम। इस फिक्रे के पहले पोर्शन में Although the tickets had been bought, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इस सेंटेंस के दूसरे पोर्शन में यानी टॉम डिडंट रीच ऑन टाइम, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड वी मिस्ड द ट्रेन, देयर लाइज अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाजरीन, आखिर में अल्लामा इकबाल का शेर आपकी खिदमत में पेश है। बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों। बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों। कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। रोज़े हिसाब जब पेश हो मेरा दफ्तर अमल। रोज़े हिसाब जब पेश हो मेरा दफ्तर अमल। आप भी शर्मसार हो मुझे भी शर्मसार कर। नाजरीन,
लेक्चर देखने का शुक्रिया। हमारे पेज को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।